Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya Nikita. Let's get started with the daily analysis of Bank Nifty and Nifty. And what a day today. I mean, the second half was really calm, but the first half was very volatile. We will definitely discuss about it when we are going to come on the 15-minute time. But before that, I remember this was the day on Friday, and I had mentioned it on my thread also that I was expecting puts below 51,000 to go to zero, and it did go. Like 51,000 and below puts definitely went to zero. I mean, it didn't even touch that particular level, but of course, given this kind of a candle, no one would have dared to sell 51,000 in overnight positions. But we'll discuss what and how things actually happened. Basically, there was this short covering on Friday, and thereafter market exactly took resistance around this particular zone. This was the gap that is still left, and Bank Nifty exactly took resistance from there. And after yesterday a mega sell off, again it took a pause. So essentially what it did, strong up move, then a pause, strong down move, then a pause. Now just to understand from Bank Nifty's perspective, like a lot of you guys would be confused exactly where Bank Nifty is going. The answer is it is going nowhere, and I'll just show you. First, just stay with me in this particular zone. Now, just check this particular zone. This is roughly 1160 points range, and Bank Nifty didn't move anywhere. You will definitely feel that today it's bearish, tomorrow it's bullish, and so on and so forth. But essentially, market didn't go anywhere. It was trying to form a base before deciding the further up. Either it forms a base and then gives a breakout, or it basically forms a base and then gives a breakdown. So right now what the problem is in this case, currently where we are in case of Bank Nifty, the zone is quite huge. Essentially the zone is around 2400 point. So in this case actually Bank Nifty is going nowhere, but the the movement within this particular zone is quite high. And look at all these things are like huge candles. This is a huge candle, this is a huge candle, this is a huge candle, again a huge candle, huge candle. Like the movement, the day-to-day movement of this particular zone is quite huge. So for me, essentially Bank Nifty is going nowhere unless it breaks this particular high or this particular low. Of course, on a smaller time frame, what we can clearly see, since Bank Nifty has been taking support of this particular zone, the moment this zone gets taken out, we can at least try and attempt to play till this level, all these levels. So यहाँ पर हम 15 मिनट में जाके देखते हैं कि क्या हुआ था आज. एंड तो 15 मिनट में what happened, बेसिकली मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन से नहीं खुला था, यहाँ पर ही खुला था. एंड द प्रॉब्लम इज ओपन होते ही इसने बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है, एंड ऑप्शन के जो प्राइजेस है वो बहुत ही वियर्ड मूव किए आज सुबह. उसके बाद यू विल सडनली सी देयर इज अ कूल ऑफ इन द ऑप्शंस कॉल सेल में. और मान लीजिएगा ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, इसको देख के किसी ने एडजस्ट किया होगा और पुट्स ऐड किया होगा, वो इमीडिएटली ही वो मतलब मर चुका होगा बिकॉज ऑफ द ह्यूज रेड कैंडल. उसके बाद तुरंत वापस ये उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आती है और फिर से दिस गेट सोल्ड ऑफ. तो ये स्टार्टिंग के जो पहले एक डेढ़ घंटे की जो वॉलेटिलिटी थी वो काफी थी. उसके बाद अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये टिपिकल ऑप्शन सेलर्स की मार्केट थी, जो बड़े लोगों ने पोजीशंस बना ली होगी. 51-200 के स्ट्राइल को बेसिकली उन्होंने जीरो कर दिया. ये जैसे फर्स्ट हाफ में इट विल जस्ट किक यू आउट एवरीवन, इट विल जस्ट ट्राई टू किक आउट एवरी सिंगल वन ऑन दिस पर्टिकुलर जो भी ये ट्रेड करते हैं, और उसके बाद बेसिकली साइडवेज एंड देयर इज जीरो मोमेंटम. अभी कल के लिए लेट्स डिस्कस. कल के लिए हम बहुत ही सिंपल रखेंगे. हमारा यहाँ पर देखिएगा दिस लेवल हैज बीन टेस्टेड सेवरल टाइम्स, ये 51,000. तो ये अगर ये 51,000 ब्रेक हो जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये 5750 या 5800 के आसपास होगा. वो भी अगर ब्रेक हो जाता है तो आवर नेक्स्ट टारगेट्स वुड बी ये जो अक्टूबर 7 की जो लोस है उसके आसपास रहेगा. ठीक है. ऑन द अपसाइड हम कभी प्लान करेंगे अपसाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल आज के हाई को तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा. उससे भी पहले अगर आप देखोगे तो ये जो एक छोटी सी जोन बनाई थी, छोटी सी रेक्टेंगल, उसको ब्रेक करना पड़ेगा. बट इतना काफी नहीं है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के लिए एटलीस्ट इसको 51,500 के आसपास तो ब्रेक करना पड़ेगा फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 51,750 से 51,800. यहाँ पर एक बार के लिए इट्स बेटर टू बुक प्रॉफिट्स बिकॉज यहाँ पर मार्केट पहले सपोर्ट ले चुका है. ये यहाँ पर ये जोन पे अगर आप देखोगे 700 के आसपास, 700 750 के आसपास, 750-800 के आसपास. सो दैट वुड बी अ प्रूडेंट लेवल टू बुक आउट एक बार के लिए. अगर यहाँ पर से आपको ब्रेकआउट मिलता है 51,500 तो फिर आप इधर तक के लिए प्ले कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर बुक करना भूलना नहीं. ठीक है. उसके बाद मान लीजिए अगर ये जा रहा है तो इट्स ओके, लेट इट गो. फिर देन हमें एक नया अच्छा ट्रेड मिलेगा अगर ये 52,000 के ऊपर वापस क्लोजिंग आ जाती है. एसेंशियली 52-200, 220 वगैरह के ऊपर अगर आ जाती है तो हमें बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ट्रेड मिल सकती है. उसके बाद ये तो हो गई अपसाइड की बात, और डाउन साइड की मैंने क्लियरली बताया. द मोमेंट 51,000 गेट्स टेकन आउट बिकॉज दीज लेवल्स हैव बीन टेस्टेड सेवरल टाइम्स, तो फिर आई विल गो शॉर्ट फॉर दीज टू टारगेट्स. यहाँ पर
आधा क्वांटिटी बुक करके ट्रेल करूंगी और ये जैसे ही ब्रेक होगा तो मैं और फ्रेश क्वांटिटी ऐड करूंगी इसमें। तो दैट इज द ट्रेड प्लान फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। नाउ लेट्स फोकस ऑन निफ्टी बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो आज हो चुकी है। ओके तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि बैंक निफ्टी में yesterday what we discussed that there is a clean pattern of head and shoulders. This is not a clean breakdown as per my breakdown rules, so I would like to wait for another candle, but ये भी जो कैंडल है ये गैप डाउन से खुल के रिकवरी आई है, सो ये मेरे लिए ये भी कंसिडर नहीं होता है, तो लेट्स वेट आउट। बट हैविंग सेड दैट इसको अगर ये इसका मतलब ये पैटर्न को छोड़ के भी अगर हम देखते हैं तो नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल सपोर्ट फॉर मी लुक्स लाइक समवेयर अराउंड द राउंड फिगर ऑफ 24,000। उससे पहले तो मेरे लिए कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख नहीं रही है इन केस ऑफ निफ्टी में। हम जरा ये बात करते हैं कि आज क्या हुआ। कल जैसे मैंने ये सपोर्ट लेवल्स मेंशन किया था, बिल्कुल निफ्टी उसके आसपास खुली, वहां से सपोर्ट लिया एंड देन मेड अ रिकवरी, और जहां पर हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस मेंशन किया था उसके आसपास सॉरी मैंने रेजिस्टेंस शायद ये मेंशन किया था, लेकिन आज ये रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद वापस डे लो के पास, मतलब बेसिकली इंट्राडे में जो भी रिकवरी आती है दैट गेट सोल्ड ऑफ, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द डे। तो बिकॉज ये ओवरऑल ट्रेंड नीचे की है, सेल ऑन राइज की चल रही है निफ्टी में। अब कल के लिए हम लोग क्या प्लान करेंगे नाउ फॉर टुमारो। बिफोर इवन डिस्कसिंग व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर टुमारो, उससे पहले मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहती हूँ। दिस वाज फ्राइडे और ये मंडे है, ठीक है, ये मंडे था, ये ट्यूसडे है और ये वेडनेसडे है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस। मंडे को क्या हुआ है, बेसिकली मार्केट में गैप अप से खुली, दैट गॉट सोल्ड इनटू, थोड़ा सा बाउंस होके फिर वापस डे लो पे क्लोज हुआ है। दिस इज अ मंडे का, यहाँ पर देखिए डे लो का क्लोज है एंड गैप अप गॉट सोल्ड इनटू। ट्यूसडे ओपन फ्लैटिश, बाउंस्ड बट क्लोज्ड एट द डेज लो, ठीक है, ये भी डे लो का क्लोज है। ओपन फ्लैटिश टू माइल्ड गैप डाउन, बाउंस अगेन क्लोज्ड एट डे लो। 3 दिन से एक पैटर्न चल रहा है कि यहाँ पर जो भी बाउंस आएगा, कॉल सेलर्स या शॉर्ट सेलर्स दे वुड लाइक टू शॉर्ट द मार्केट एंड दे वुड लाइक टू मेक द मनी। तो ये रोज ऐसे ही हो रहा है। अब कल मान लेते हैं कि कल अगर ऐसा कुछ होता है तो मोस्ट लाइकली ये पैटर्न रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। एक तो कल एक्सपायरी है एंड एक्सपायरी इज इन केस ऑफ निफ्टी की एक्सपायरी बहुत ही ऐसी होती है कि इट लाइक्स टू ट्रैप मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, कंसेंसस को ट्रैप करना उसको पसंद है। अब यहाँ पर हम लोग कल के लिए क्या प्लान करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ये ब्रेक करता है तो प्लीज वेट विदाउट अ फॉलो, मतलब ऐसे नहीं कि 15 मिनट के लिए आपने पूरा वेट किया और आप एंटर कर रहे हो, नहीं, मैं बोल रही हूँ कि 15 मिनट की पूरी एक कैंडल बनने दो, उसके बाद एक और कैंडल बनने दो और फिर आप देखो उस पे। यू कैन मे बी गो ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, बट द आइडिया इज व्हाट विल हैपन अदरवाइज। यहाँ पर तो रेड बन जाएगा, द वेरी नेक्स्ट कैंडल वुड बी अ ग्रीन एंड देन फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सो दैट्स द रीजन, जस्ट बी वेरी श्योर कि शॉर्ट, क्योंकि ऐसा मार्केट करता है हमेशा। सो जस्ट वेट आउट फॉर 2 रेड कैंडल्स इन कंसेक्यूटिव इन अ रो और उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ये 24,200 और ये वाले टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हो। इन केस ऑफ अ गैप अप ऐसा हो सकता है कि मार्केट ये फर्स्ट बाउंस पे मतलब सेल ऑफ करके फिर वो मोस्ट लाइकली मतलब स्ट्रैंगल्स को प्ले करे, ठीक है, अगर गैप अप होता है तो। ये नहीं मैं बोल रही कि आज का जो लो है वो ब्रीच नहीं होगा, डेफिनेटली ब्रीच होने के चांसेस है, बट स्टिल इट विल बी काइंड ऑफ अ वोलेटाइल जहां पर स्ट्रैंगल्स विल गेट सम सॉर्ट ऑफ अ मनी इन दिस काइंड ऑफ अ केस। नाउ इन केस ऑफ अ मेगा गैप डाउन जस्ट डोंट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट इन केस ऑफ अ गैप डाउन, जस्ट वेट। ये देखिए आज भी हल्का सा गैप डाउन ही था मार्केट, बट वो इमीडिएटली बाउंस होता है। ये फर्स्ट बाउंस है ना, ये आ जाती है, तो हमेशा गैप डाउन पे जो शॉर्ट, क्योंकि रोज सेलिंग चल रही है, तो गैप डाउन पे व्हाट पीपल वुड लाइक टू डू, लाइक जस्ट इमेजिन इफ यू आर कैरिंग शॉर्ट पोजीशंस ओवरनाइट लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर डे लो का क्लोज, और आपने देखा ये सारा जो अटेम्प्ट निफ्टी ने किया था इंट्राडे में बाउंस होने का, वो पूरा का पूरा चला गया बाय डे एंड। तो द मोमेंट यू आर लुकिंग एट अ प्रॉफिट, बिकॉज गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग सम प्रॉफिट, यू वुड लाइक टू बुक इट आउट, और एटलीस्ट इफ नॉट देन जैसे ही थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा तो आपका जो एमटीएम है वो मान लीजिएगा वो +10 के है, +10 के से 9 के, 8.5 के, 8 के, तो यू विल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स से 7.5 के पे यू विल डिसाइड ओके नाउ आई जस्ट फर्स्ट बुक इट आउट। सो दैट इज व्हाई इट विल दैट ट्रिगर, आई मीन द चेन ऑफ दिस थिंग विल ट्रिगर एंड देन दैट्स द रीजन थोड़ा सा एक अपमूव आने के चांसेस है। फिर ऐसा अगर होगा तो फिर आपको अपमूव के बाद वापस सेल करने के लिए देखना चाहिए, बट एज आई सेड कि कल मेरे को लग रहा है ये सेम पैटर्न जो रिपीट हो रही है रोज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है एंड मोस्ट लाइकली कल शायद मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करे। हमको लॉन्ग कब जाना है, आई टेल यू द वेरी सिंपल थिंग। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो सिंपल है, जैसे ही 600 का लेवल ब्रेक होता है तब आप लॉन्ग जा सकते हो, बट अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो यहाँ पर भी अगर आपको डब्ल्यू मिलती है, ये जो आज का ये जो 24,300 के आसपास अगर आपको यहाँ पर 300 से 400 के बीच में अगर आपको डब्ल्यू मिलती है, दैट इज ऑल्सो वेयर यू कैन लुक फॉर गोइंग लॉन्ग विद अ स्मॉलर एसएल, ठीक है, क्योंकि इस केस में आपकी एसएल इधर की होगी, मतलब हार्डली 75 to 100 पॉइंट्स की होगी। बट इन केस ऑफ इन केस यहाँ पर मेगा गैप डाउन हो तब आई वुड नॉट एडवाइज, आई मीन आई वुड नॉट माई सेल्फ वुड वॉन्ट टू गो एंड शॉर्ट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। तो सिंपल है, कल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रैप कर सकता है, बिकॉज ये हर रोज
रोज क्या कर रहा है, ये सेलर्स को पैसा बना के दे रहा है. सेल मतलब आई एम नॉट सेलिंग ऑप्शन सेलर्स, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो शॉर्ट सेलर्स है मार्केट में, पीपल हु want to short the market and make money. It from the option sellers perspective it is call sellers, and from the option buyers perspective it is put buyers. So from the past 3 days it is trying to make money for those guys of people. So most likely it might do some sort of sudden shift. और यहाँ पर हमने 600 के ऊपर क्यों बोला, यहाँ पर फिर ये क्लीन W हो सकता है, तो फिर यहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हो. दैट इज वन थिंग. अगर बट प्रॉब्लम ये है, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग जाओगे फिर आपके लिए स्विंग लो तो यहाँ पर है, एल्स यू विल हैव टू गो ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड पिक अ स्मॉलर स्टॉप लॉस फॉर योरसेल्फ, बिकॉज तब तो मतलब जो भी प्राइस एक्शन तब बनेगी उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा. अदर थिंग एज आई सेड, यहाँ पर ये एक वापस आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस, इफ दिस गेट्स broken just wait for another follow through candle and only then short for new targets of 24,200 24,100. My gut feeling is like it would like to trap the sellers because every day people are coming and selling the market, so most likely it might so happen that it would like to trap all of these guys. Let's see how it goes tomorrow. We are also coming up with our 4-week mentorship program which will be starting on November 9, and the offline session, one day offline session would be held in Ahmedabad. So for those of you जिनको इंटरेस्ट है ये प्रोग्राम के ऊपर, तो आप लोग जाके हमारे लिंक्स को जाके चेक कर सकते हो एंड यू कैन रजिस्टर. बेसिकली व्हाट वी डू, वी ट्राई टू, जैसे हम यहाँ पर प्राइस एक्शन करते हैं वहाँ पर व्हाट वी ट्राई टू डू, वी बेसिकली हैव डिजाइन फ्यू ऑफ आवर सेटअप which is basically plug and play models, and that's how people who want to shorten their learning curve can actually look out for this kind of a program. Hope you have liked this particular video. And one last final thing, हमने कल ही डिस्कस कर रहे थे सिल्वर तो 1 लाख कभी भी टच कर सकते हैं, और सिल्वर ने डेफिनेटली कल 1 लाख अचीव की है. फॉर दोस ऑफ यू हु आर होल्डिंग, ऑसम एंड कांग्रेचुलेशन. बट फॉर दोस ऑफ यू जिनके पास नहीं है, प्लीज वेट आउट. यहाँ पर अपने को करेक्शन जब भी मिलेगी या पुल बैक मिलेगा फॉर दैट मैटर, तो तभी हमको एंटर करना है. दैट्स ऑल. सो सी यू टुमारो एंड प्लीज डू कॉमेंट ये बताने के लिए कि आज की आपकी एक्सपायरी कैसी रही, और बैंक निफ्टी में आपको ये फर्स्ट 1 आवर आपके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट रहा है. प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. सी यू टुमारो. बाय बाय. टेक केयर.